Ji, Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Once again, I'm with you with a new topic, exploring the concepts. I welcome you all in my YouTube channel, exploring the concepts. And once again, I am with ninth class. So be attentive, ninth class. सारी naughtiness छोड़ दें, थोड़ी देर ध्यान से lecture सुने और फिर इसको याद करें and then do practice it by writing all of the main concepts and the figures which are needing and as your exams are concerned. And cells and tissues. My today's topic is from cells and tissues, chapter number 4, animal tissues. And we are working these days on animal tissues. But before starting the today's topic, I want to go through a quick review. So be it alert, everyone. My first question is, how would you define connective tissues? कैसे करेंगे आप connective tissue को define? So if you are able to define, then it's a good thing. But if you are not able, please go to my last lecture and listen to it carefully and then try to answer this question. Give different examples of connective tissues. So it means there are so many examples of connective tissues are there and you need to answer them. Then what is the purpose of adipose tissue? Now this is how adipose tissues are important to our body. ठीक है ना, क्या फ़ायदा है हमें एडिपोज टिश्यू का, व्हाट आर देयर पर्पस एंड व्हाट विल हैपन इन द एब्सेंस ऑफ नर्वस टिश्यू. सो अगर नर्वस टिश्यू नहीं होता तो क्या होता, ये बताना है इसमें. What are the main functions of connective tissues and nervous tissue? So this is what are their main functions, their main concerns, there are main duties of the both connective and the nervous tissue. Please go through the last video and answer all these questions thoroughly and prepare them and write them on your notebooks. Then types of animal tissues. So today's topic is and types of animal tissues. So we have done so far the epithelial, the connective, the nervous. So we have completed with these three types among the four, and the fourth one, muscle tissue. I'm going to discuss this today with you. And then epithelial has five types, and we have discussed all five types. And then connective tissue has no type, nervous tissue has no other types, while muscle tissues has three different types: skeletal muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. And I'm going to discuss first skeletal, then cardiac, then smooth today, and we will end up with the animal tissues. And now I'm starting with the muscle tissues. This is the muscle. सबने देखा हुआ है गोश्त, ठीक है ना, एंड दैट गोश्त इज एक्चुअली द मसल, ठीक है ना. और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा टिश्यू कोई प्रेजेंट है अगर, तो वो मसल्स हैं. मसल्स आर न्यूमरस इन आवर बॉडी, और इसमें ये कुछ वाइटिश रीजन होता है. वंस अगेन, हु इज गोइंग टू टेल मी दैट वाइटिश रीजन? दिस इज द फैट्स, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू also present between them in a form of membranes, and these are the muscle tissues. इनके दरमियान में connective tissues भी present है. आपने कभी अभी शायद अभी आप छोटे हैं, आपने इसको भी हैंडल नहीं किया होगा, सो आपको आइडिया नहीं है. लेकिन अब जब गोश्त आए घर में, अम्मी इसको कुछ कर रही हैं कटिंग वगैरह, तो आपने ध्यान से देखना है. Okay, जी. So human body has over 600 skeletal muscles. So this is very important point. मुझे बहुत पसंद आया that it has given you the whole number of the skeletal muscles. This is 600 skeletal muscles that have bones and other structures. जैसे आपकी बॉडी में bones भी हैं और दूसरे structures भी हैं जिनके साथ मसल्स अटैच्ड हैं. कितने हैं टोटल? 600 हैं. And then the most important thing about the muscle tissues is consist of bundles of long cells. ये मैं भी थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ कि एक आपने वायर देखी है ना, कॉपर वायर, आम जो वायर होती है उसे हम कट करके ऊपर से प्लास्टिक का निकालते हैं तो अंदर से बहुत सारे गोल्डन कलर की कॉपर वायर्स निकल आती हैं. सो द सेम इज द केस, दैट इज एक्चुअली दैट वायर इज एक्चुअली द बंडल ऑफ कॉपर, एंड उसमें बहुत सारे कॉपर वायर होते हैं. और मसल्स आर द बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स, उनका नाम है मसल फाइबर. यानी कि एक इंडिविजुअल सेल ऑफ द मसल टिश्यू इज कॉल्ड एज मसल फाइबर. And muscle tissue, how muscle tissues are formed? By combining many muscle fibers. अब जब खाना खाते हो कभी नोटिस किया, गोश्त बनाओ, नोटिस किया आपने अपनी बोटी को निवाले से तोड़ने की कोशिश की तो कोई लंबे लंबे से धागे अलग हो गए. एंड व्हाट आर दीज आर मसल फाइबर्स. एंड कि आपने देखे हुए हैं, आपने बल्कि खाए हुए भी हैं, ठीक है ना. सो मसल फाइबर्स आर एक्चुअली द बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स. एंड देन मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एन एनिमल, मैंने को बताया था कि सबसे ज़्यादा कोई टिश्यू अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वो है मसल टिश्यू. और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन. मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है. कॉन्ट्रैक्ट करना, इकट्ठा हो जाना, और फिर रिलैक्स करना, फैल जाना, ये हम देखेंगे थोड़ी देर में. Now look at this diagram. This is actually showing you
this the composition of the muscle. This figure is showing you the composition. Then ये muscles के pieces शायद आपने देखे हैं नहीं तो shop में तो पड़े देखे ही होंगे. So water, it contains 75% water. Protein is the major content of the muscles. ठीक है ना? Proteins, it is rich with the proteins. 5% मसल्स में टिश्यू फैट्स भी होती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 30% आप कह सकते हो कि द फैट प्रेजेंट इन आर मसल. जितना भी आप गोश्त खोलते हो, जैसे गाय वगैरह का गोश्त होता है, बफलो का गोश्त होता है, उसको उसको करें तो उसमें ज़्यादा फैट्स होती हैं ना, उसमें ज़्यादा वाइट वाइट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं. सो लाइक this muscle has more fat as compared to this and that part. ठीक है ना? So carbohydrate very small amount, उसमें जो carbohydrate होती है वो बहुत थोड़ी होती है, कार्बोहाइड्रेट ना होने के बराबर होती है मसल्स में. यू नो ऑल दिस इज अ प्रोटीन डाइट. ठीक है ना? नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज यू नो, ये उन्होंने यहाँ से मसल का एक पीस निकाला. वो पीस कैसा है? ये ऐसा है. आपको यहीं से नजर आ रहा है दैट इट हैज सो मेनी बंडल्स इन इट, है ना? एक ये बंडल है, एक ये बंडल है, एक ये बंडल है. एंड दिस बंडल, अब एक बंडल उसने निकाल दिया है, ऊपर एक वाइटिश कनेक्टिव टिश्यू अटैच्ड है, और फिर ये देखो ये मसल फाइबर है. अंदर बहुत सारे मसल फाइबर एट प्रेजेंट है. मैंने आपको बताया था ना, वायर के अंदर कॉपर वायर की तरह. और ये सारे मसल फाइबर, और अभी बात ख़त्म नहीं हुई. मसल फाइबर के अंदर भी कुछ और प्रेजेंट है. चलिए वो आप बड़े हो जाएंगे, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे फिर इसको पढ़ेंगे आप. लेकिन अब यहाँ तक आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि दैट मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स. सो जहाँ तक हम, गूगल का बहुत शुक्रिया, उसने हमें फिगर इमेजेस दिखा दिए, देखने दिए, और उसने ऐसे रखे कि हम देख पाए ना. हाँ, लुक एट दिस. इसमें हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन. अभी अब देखो ना कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाएगी. आ, ये ये देखो वो फूल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ये रिलैक्स हो गया. ठीक है? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. This is called as contraction of muscle tissue. So this is how we can see that how our muscles work. ओके, देन टाइप्स ऑफ मसल्स पे जाते हैं. हमने कॉन्ट्रैक्शन भी देख ली, हमने मसल फाइबर भी देख लिया. अब हम मसल्स की टाइप्स पे चले गए. एंड वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. स्केलेटल मसल्स, जो जो हमारी बोन्स के साथ अटैच्ड है. स्केलेटल मसल्स विच आर प्रेजेंट ऑन आर बोन्स. ये बाइसेप अभी देखा था हमने, और जो ट्राइसेप्स हमने देखे, आपके भाई वगैरह जिम करते होंगे, आके कहते होंगे देखो मेरा कितना मोटा डोला हो गया है ना. So वो जो डोला है ना, that is actually the skeletal muscles. Okay, and then smooth muscles. Smooth muscles are present in our stomach wall, in the walls of our intestine. So ये उनकी walls में present है, and they are called as smooth muscles. ये देखो ये लंबे लंबे हैं, और ये इनमें वाइड लाइट और डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं. बाकी ये कन्वेक्स लेंस के शेप के हैं ना, दरमियान में से मोटे, साइडों से पतले. And these are cardiac muscles, and they are found present only and only in our हार्ट मसल्स. ये सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट हैं. इनका नाम है कार्डियक. ख़ास बात होगी इनमें तभी ये कार्डियक में प्रेजेंट हैं. अच्छा, ये हड्डियों के साथ अटैच्ड हैं. दीज आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स, एंड दीज आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन कॉल्ड द हार्ट. ये डिफरेंट है, ये ब्रांच्ड है इसमें भी लाइट और डार्क बैंड्स स्केलेटल की तरह, लेकिन शेप इसकी भी वैसी है, लेकिन कुछ और डिफरेंसेस हैं जो इसके अंदर हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट एक और फिगर देख लो. अब हाँ, ये वो फिगर है कि आपको बता रही कि स्केलेटल मसल्स ये वाले हैं, बोन्स के साथ अटैच्ड हैं. कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट. और ये देखो स्पिंडल शेप्ड या कन्वेक्स लेंस शेप्ड muscles, smooth muscles, they are present in the large intestine, small intestine, in the stomach, and all internal organs. Okay, now let's discuss the स्केलेटल मसल. सबसे पहले हम स्केलेटल मसल्स पढ़ेंगे. ये देखो हमारी पूरी बॉडी, मैंने सिर्फ इतना सा पोर्शन लिया, पूरी बॉडी भी ले सकते थे. बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट हैं हमारे ऊपर. उसके ऊपर अल्लाह ताला ने शुक्र है स्किन चढ़ा दी, वरना हम अंदर से ऐसे होते. फिर इसके बाद जी स्केलेटल मसल्स लुक्स लाइक से स्ट्राइप्ड और स्ट्राइएटेड. आपको नजर आ ही रहा है यहाँ पर भी. अभी मैंने आपको दिखाया था वाइट एंड वाइट लाइट बैंड्स नजर आ रहे थे ना. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड और स्ट्रिप्ड. एंड द फाइबर्स ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, जिसकी वजह से जैसे ज़ेब्रा के ऊपर वाइट और लाइट लाइंस है ना, या टाइगर के ऊपर है, वैसे ही आपके मसल्स में भी है. ये देखो, अब ये देखो ये लाइंस नजर आ रही हैं स्ट्राइएटेड, इसलिए इसको कहते हैं, या स्ट्रिप्ड कहते हैं इसके, बाबा स्ट्राइप्स बनी हुई हैं. ये इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है. न्यूक्लियस भी है हर सेल में, और ये वो मसल्स हैं जहाँ से ये हमने एक पीस ऑफ टिश्यू निकाला है, मसल टिश्यू निकाला है. अच्छा, स्केलेटल मसल फाइबर पैक्ड हैं और रेगुलर पैरेलल बंडल्स में. वो बंडल्स मैंने अभी अभी दिखाए थे आपको.
And one thing very important, these are called as voluntary muscles. आपकी मर्जी आप इन्हें मूव करवाओ, यूज करो ना यूज करो, आपकी मर्जी, कोई आपको हाथ हैंड वेव करे आप भी वापस वेव करो, आप चाहो तो ना करो, ठीक है ना. सो दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, मीन्स दे आर अंडर आर ओन कंट्रोल, कॉन्शियस कंट्रोल. ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है. वी कैन कंट्रोल दैम, वी वांट to use them, whether we want to use it or not, so this is under our will. So that such a muscle is called as voluntary muscle. मगर स्मूथ और कार्डियक दोनों की मूवमेंट हो रही है, मगर हमें पता ही नहीं है, ना हमें पता है ना वो हमारी मर्जी से मूव करते हैं. सो वो दोनों कैसे हैं? इनवॉलेंट्री हैं. स्केलेटल मसल्स हमारी मर्जी, हम भागें ना भागें, हम लिखें ना लिखें, हम एक्सरसाइज करें ना करें, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री मसल्स. ठीक है ना. लेकिन हार्ट आपका कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, हमें नहीं पता, हम उसे नहीं रोक सकते, हम उसे यार हार्ट थोड़ी देर रुको, ऐसा नहीं हो सकता. खाना आप खाने लगे हुए, स्टमक में डाइजेशन शुरू हो गई, आपसे पूछ के नहीं हो रही. इसका मतलब है कि स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स दोनों आर द टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स. ओके. देन स्केलेटल मसल्स को डिटेल से देखते हैं. दिस इज द मसल फाइबर एंड डेवलप थ्रू दिस, ये आपके पास एक मसल फाइबर डेवलप हो गई. सो ये इसका मायोब्लास्ट है, यानी कि इमेच्योर मसल सेल है, ये थोड़ा सा मेच्योर हुआ, और मेच्योर होने के बाद ये मेच्योर मसल सेल बन गया. ठीक है. और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एक से ज़्यादा हो सकता है. फिर ये एक मसल फाइबर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी आपको जो फिलहाल तो जरूरत नहीं है. सो ये एक मसल फाइबर है आपका. ठीक है ना. एक मसल सेल मैंने आपको दिखाया है कि वो कैसा होता है. उसके ऊपर इस तरह की डार्क और डार्क और लाइट लाइंस भी होती हैं. तो हम इन्हें कहते हैं कि स्ट्राइएटेड हैं, या इसकी अम, और इसकी लेंथ देखो कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, बहुत लंबे हो सकते हैं ये. ठीक है. Okay, now cardiac muscles. Cardiac muscles की सबसे important बात, then these are striated no doubt, but they are branched, ठीक है, and they have intercalated discs. ये दरमियान में इसके strong सी cell membrane बनी हुई है, इनको कहते हैं intercalated discs. और यहाँ से ये इसलिए होती है इनके दरमियान में ताकि जल्दी जल्दी मसल्स को ना मैसेजेस प्रोवाइड कर सकें. Cardiac muscle tissue like skeletal tissue looks striped or striated. ये पॉइंट तो अब आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. ब्रांच्ड हैं और ट्री की तरह लगते हैं. एंड जनाब नेक्स्ट इज skeletal. Unlike skeletal muscles, the contraction of cardiac muscle tissue is usually not under conscious control, so it is called involuntary. है ना. आपके कंट्रोल में नहीं है. 1 मिनट में 75 से 85 टाइम्स तक हमारा हार्ट बीट करता है बिकॉज ऑफ इनवॉलेंट्री, और हमें मालूम भी नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन हम उसे नहीं देते कि अब बीट करो, अब बीट ना करो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज कार्डियक मसल्स. दे आर ब्रांच्ड, दे आर striated, they have intercalated discs, and they are involuntary. You should know at least 4 points for each muscles. Then this is the heart. ये हार्ट के मसल्स को निकाला हुआ है इन्होंने. आप देख रहे हो ब्रांच्ड भी है, इंटरकलेटेड डिस्क्स भी हैं, और एक सेल में एक न्यूक्लियस है. अच्छा. And these are voluntary or involuntary? Involuntary. That's nice. Okay, then smooth muscles. Look at the smooth muscles. ये आपका एक स्मूथ मसल है. मैंने आपको बताया था कि स्मूथ मसल इज लाइक कन्वेक्स लेंस, और यू कैन सी, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट्स की दिखाई है, रिलैक्स स्टेट दिखाई, ये कॉन्ट्रैक्टेड है. और ये हार्ट जो है ना, हार्ट के मसल्स फास्ट मूविंग है. ठीक है ना. वो तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और इतना तेज कर रहा है कि आप तो उसकी बीटिंग महसूस भी कर सकते हो. और जो आपका स्मूथ मसल है वो कैसा है, वो स्लो मूविंग है. ठीक है ना. तभी तो हमें पता भी नहीं चल रहा कि मूवमेंट हो भी रही है या नहीं, लेकिन हार्ट बीट कर रहे हैं तो हमें इसकी आवाज़ आती है ना, धक 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 आती है ना हमें आवाज़ें. तो या फील करते हैं हम बीट को, तो वो बीट को हम इसीलिए फील कर पा रहे हैं क्योंकि वो ज़रा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है उसकी. लेकिन बाकी बॉडी की मूवमेंट इतनी, बाकी मसल्स की मूवमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स की मूवमेंट स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है. कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स आर स्मॉल. एक तो छोटे भी हैं. दे आर स्पिंडल शेप्ड एंड हैव नो स्ट्राइएशंस. इसमें स्ट्राइएशंस नहीं है. इस शेप को स्पिंडल कहते हैं. और इस शेप को मैं कन्वेक्स लेंस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने कन्वेक्स पढ़ा हुआ है, दैट इज वाइड फ्रॉम बिटवीन एंड ends are pointed. So such a shape is called as convex lens, spindle, और या स्मूथ मसल की शेप ऐसी है. They have bundles of thin and thick filaments. और इसके पास थिक और थिक फिलामेंट्स की बंडल्स होते हैं. खैर वो अरेंजमेंट आपके लिए ज़रूरत नहीं थी. बहरहाल स्मूथ मसल की फिगर देखते हैं आप. दिस इज द वॉल ऑफ द स्टमक.
और ये इंटेस्टाइन, एंड दैट इज द, ये दोबारा इंटेस्टाइन का कट हुआ हुआ है, ये देखो अंदर से दिखा रहे हैं, ये वाली लेयर आपके पास आ गई इंटरनल लेयर, और ये वाली, ये तो एंडोथेलियल होगी ना, ये वाली जो है ये सर्कुलर लेयर ऑफ मसल, स्मूथ मसल्स हैं। सो ये सर्कुलर में आपको नजर आ रहे हैं, स्पिंडल शेप्ड है, ये भी स्पिंडल वाले, लेकिन इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है ये भी स्मूथ ही, ठीक है ना। आपको पता है ना, दो मसल्स हमेशा एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। चलिए हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि एक मसल एक वक्त में काम करता है, दूसरा मसल उस टाइम पे रिलैक्स करता है। सो हमेशा ऑल्टरनेशन होती है काम टास्क की, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वो मिल के करते हैं। अच्छा, स्मूथ मसल्स भी हो गया, एंड दैट इज द रीकैप। सो लेट्स डिस्कस द रीकैप एंड रिकॉल कर लेते हैं। दीज आर द स्मूथ मसल्स एज दीज आर प्रेजेंट इन द internal organs. These are the cardiac muscles. The word cardiac means relating to heart. They are present in the heart. And the skeletal muscles, these are present in the muscles of our body. अब ये स्पिंडल शेप्ड है, नॉन स्ट्राइएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, और इन द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड आर इनवॉलेंट्री, याद रखना। कार्डियक स्ट्राइएटेड हैं, ब्रांच्ड हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड हैं, और हार्ट में प्रेजेंट हैं, एंड आर इनवॉलेंट्री। एंड व्हाट अबाउट द स्केलेटल मसल्स? दीज आर स्ट्राइएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, एंड usually attached to skeleton and are voluntary. So these are the only muscles which are voluntary, and these are working fast. These are working slow. These are internal, cardiac, and skeletal. So there are three different kinds of muscle tissues, and I'm hoping कि आपको समझ आ गई हैं तीनों types. अगर समझ नहीं आई तो we will discuss. You can write me any question. If you want to ask anything, you can write me in the comment box. You can ask me whenever you want to know, to ask anything. और ये इस मसल्स का ध्यान से लेक्चर सुने और इसको अच्छी तरह से पढ़ें। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।